Assalamu alaikum, grade 6th. How are you all? I expect that you all are safe and sound. Grade 6, this is your English lesson, and today we'll be starting our unit number 7, and that is on page number 35. So open your English books at page number 35. This is unit number 7, Baby on Board, right? Here, take a pencil with yourself, so if there's some word meaning, you can note it down. First, I'll read the whole page for you, and after the reading, I will explain each and every sentence. So, come to the reading. Place your fingers on the book and read it with me. Baby on Board. Milwina Dean was born on 2 February 1912, over 100 years ago. She was 2 months old when she became famous as the youngest passenger on Titanic. Her parents were leaving England for America. There were third-class passengers on the Titanic. Third-class passengers were the poorest passengers, and they were not treated well as the rich first-class passengers. The Deans also had a little boy, Bertram, who was 2 years old. On its first voyage, the Titanic hit an iceberg and sank on 14 April 1912. That night, the Deans were in their cabin. They had just put Bertram to bed, and Etty, Milwina's mother, was feeding her little baby. Milwina said the family would have all drowned except for her father's quick reaction. He heard the crunch when the ship hit the iceberg and went to investigate. He quickly returned, and they all went up on deck. He saw the lifeboats being lowered. Milwina was so small that he put her into a sack. He got his wife onto lifeboat 13 and then lowered the precious sack onto the boat. Suddenly he noticed that Bertram was missing. He searched frantically. He spotted Bertram leaving in another lifeboat and knew somebody would take care of him. A few days later, Etty found her little boy. Milwina's dad was brave and unselfish. He stayed on the sinking ship to help others. 706 people were saved and 1,523 drowned. Sadly, little Milwina's dad was one of the unlucky ones. Milwina enjoyed a long, healthy life but always missed her dad. The Titanic wreckage was discovered in 1985. Milwina became famous again as people wanted to meet the miracle baby. Okay, grade 6, this was the reading, and I know this was quite long, but it's okay. I know you can do it. So this is a story about a girl whose name is Milwina Dean. Okay, first I'll tell you about the background. Milwina Dean was born on 2 February 1912. तकरीबन 108 साल पहले. She was born on 2 February. Okay. 1912 में वो पैदा हुई थी, over 100 years ago. 100 से भी ज़्यादा सालों से पहले. 108 साल, अगर आप 220 का काउंट करें तो 108 साल पहले वो पैदा हुई थी. In this picture, this little one is Milwina here, and the same picture is in your book too. ठीक है? Okay, तो she was 2 months old. वो 2 महीने की थी. She was 2 months old. वो 2 महीने की थी. When she became famous, जब वो मशहूर हुई. Became मतलब हो जाना, famous मशहूर. ठीक है, यानी लोग जानते हैं उन्हें, लोग मिलना चाहते हैं उनसे. As the youngest passenger on Titanic, वो क्यों मशहूर हुई थी? Because she was most youngest passenger of the Titanic. Now what is Titanic? Titanic 1910 में ये एक बोट बनाई गई थी जिसको उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी शिप कहा जाता था, और ये उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी.
और इसके बारे में इसके बनाने वाले ने ये कहा था कि दिस विल नेवर सिंक, कुछ भी हो जाए ये डूब नहीं पाएगी, ये नहीं डूब सकती। और जब टाइटैनिक जो था ये इस शिप का नाम था, और ये शिप जब अपने पहले सफ़र पर निकली समंदर में तो ये पहले ही सफ़र में डूब गई। ओके, लेकिन ये बहुत ही बड़ा सानेहा था बिकॉज़ अराउंड 1500 पीपल, 1500 लोग मरे थे इसके डूबने से। एंड इट वाज इन द मिडल ऑफ फ्रीजिंग वाटर, और बहुत ही बर्फीला इलाका था जहाँ पे ये डूबी, राइट। तो टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकली थी। टाइटैनिक जो कि 1912 की सबसे बड़ी शिप थी, उनका पहला सफ़र हुआ था 1912 में, ठीक है। और उस पर सफ़र करने वाले बड़े ही पहले पैसेंजर्स थे, और ये शिप जा रही थी तकरीबन इंग्लैंड से अमेरिका जा रही थी, ठीक है। सो व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ मिल्वीना विद टाइटैनिक। मिल्वीना जो थी ये सबसे यंगेस्ट पैसेंजर थी, सबसे छोटी सबसे छोटी बच्ची थी जो कि इस शिप पर ट्रैवल कर रही थी। वो 2 महीने की थी एंड देयर वाज नो वन यंगर देन हर। उससे छोटा इस शिप पर कोई नहीं था, इसीलिए वो मशहूर हो गई थी कि क्योंकि ये बहुत टाइटैनिक का जाना, टाइटैनिक का सफ़र पे निकलना उस टाइम की न्यूज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आप कह लें इवेंट था, ठीक है। जैसे आज कोई दुनिया का सबसे तेज़ तरीन रॉकेट लॉन्च हो जाता है या दुनिया की सबसे तेज़ तरीन ट्रेन लॉन्च हो जाती है और उसके बारे में लोग ऐसा कहें कि ये तो कभी बर्बाद नहीं हो सकती, ये ख़राब नहीं हो सकती, तो बहुत बड़ी बात थी ये उस वक्त के लिए। एंड मिल्वीना जो थी वो उसी टाइटैनिक पर जाने वाली सबसे छोटी बच्ची थी, इसीलिए वो बहुत मशहूर हो गई थी जब वो 2 महीनों की थी। हर पेरेंट्स वर लीविंग इंग्लैंड फॉर अमेरिका। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके जो वालिदैन थे, पेरेंट्स वालिदैन, वर लीविंग, वो छोड़ रहे थे इंग्लैंड फॉर अमेरिका, वो छोड़ रहे थे इंग्लैंड, इंग्लिस्तान को अमेरिका जाने के लिए, यानी वो इंग्लैंड से अमेरिका जा रहे थे। There were third class passengers on the Titanic. अभी whenever you travel in a train or whenever you travel in a big ship, you may find a system, it is called first class passenger, third class passenger. इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्लास पैसेंजर वो होते हैं, वो सफ़र करने वाले लोग जो कि महंगी टिकट लेते हैं और उनको सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हवाई जहाज़ में भी ये सिस्टम होता है, इकोनॉमी होता है उसमें और एक फ़र्स्ट क्लास सीट्स होती हैं। तो जो महंगी टिकट्स लेते हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, उनको फ़र्स्ट क्लास पैसेंजर कहा जाता है। जो सस्ती टिकट ले लेते हैं उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं मिलती और उनको थर्ड क्लास पैसेंजर कहा जाता है। तो मिल्वीना की जो फैमिली थी वो थर्ड क्लास पैसेंजर थे। वो इस शिप पर गरीब जो तबका है उससे ताल्लुक़ रखते थे और उनकी टिकट भी सस्ती थी, उनके पास इतना फैसिलिटीज़ भी उनको इतना प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। थर्ड क्लास पैसेंजर्स वर द पुअरेस्ट पैसेंजर्स। थर्ड क्लास पैसेंजर जो होते हैं वो सबसे गरीब पैसेंजर्स होते हैं। पैसेंजर क्या होता है, पैसेंजर होता है जब कोई शख्स जो है वो टिकट लेके किसी भी चीज़ में ट्रैवल करे, एयरप्लेन में, शिप में, बस में, तो वो फिर पैसेंजर कहलाता है, ठीक है। तो वो जो थे वो सबसे पुअर पैसेंजर थे एंड दे वर नॉट ट्रीटेड एज वेल एज द रिच फर्स्ट क्लास पैसेंजर। और थर्ड क्लास पैसेंजर को उनका इस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता था। ट्रीटेड मीन्स टू टेक केयर, एज वेल एज जिस तरह रिच या फर्स्ट क्लास पैसेंजर का रखा जाता था। तो मिल्वीना एंड हर फैमिली वाज थर्ड क्लास पैसेंजर्स। द डीन्स ऑल्सो हैड अ लिटिल बॉय। ये जो मिल्वीना डीन थी, इनकी फैमिली को डीन्स फैमिली कहा जाता है, ठीक है। तो डीन्स की फैमिली में दे हैड अ लिटिल बॉय, उनके पास एक छोटा बच्चा और भी था, एक लड़का था, वो बेट्रम, उसका नाम क्या था, बेट्रम, हु वाज 2 years old, जो कि 2 साल का था, राइट। ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज, अपने पहले सफ़र पर, अपने पहले समंदरी सफ़र पर, वॉयज बेसिकली जो शिप जो है वो समंदर के ज़रिए सफ़र करती है उसको वॉयज कहते हैं।
लेकिन वॉयज सफ़र को भी कहते हैं। तो ऑन इट्स फर्स्ट वॉयज, अपने पहले समंदरी सफ़र पर, द टाइटैनिक हिट एन आइसबर्ग, जो टाइटैनिक की शिप थी वो टकरा गई बर्फ़ के एक बहुत ही बड़े टुकड़े से। ठीक है, आइसबर्ग इज़ अ वेरी बिग पीस ऑफ द स्नो ऑफ, जो कि पत्थर जैसी होती है और वो ग्लेशियर का एक हिस्सा होता है। ग्लेशियर जब टूट जाता है तो उससे आइसबर्ग बनते हैं, एंड आइसबर्ग्स आर क्वाइट बिग, एंड सैंक ऑन 14 अप्रैल 1912। और वो जो टाइटैनिक जब आइसबर्ग के साथ टकराई, ठीक है, तो वो वहीं पे ही डूब गई, सैंक, टाइटैनिक की जो शिप थी वो वहीं पे डूब गई इन 14 अप्रैल 1912, जब 14 अप्रैल की रात थी और इट वाज 1912 वाला ईयर था। अ सैंक मीन्स डूब जाना, हिट मीन्स टकराना। दैट नाइट, उसी रात, द डीन्स वर इन देयर केबिन, जो डीन्स की फैमिली थी, मिल्वीना डीन्स की फैमिली थी, वो अपने केबिन यानी अपने रूम में थे। ठीक है, दे हैड जस्ट पुट बेटरम टू बेड, उन्होंने सुला दिया था, जो मिल्वीना का बड़ा भाई था बेटरम, उसको उन्होंने सुला दिया था। और पुटिंग टू बेड मीन्स सुला देना। एंड एटी, मिल्वीनाज मदर, और जो मिल्वीना की मदर जो थी, जिनका नाम एटी था, वॉज फीडिंग हर लिटिल बेबी, और वो फीड कर रही थी छोटी सी मिल्वीना को। ठीक है, Milvina said the family would have all drowned except for her father's quick reaction. अब जो मिल्वीना है वो अपने उस वक्त को याद करते हुए कहती है, शायद बाद में मिस मिल्वीना जो है उनका इंटरव्यू हुआ हो, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, मिल्वीना सेड, उन्होंने कहा, द फैमिली वुड हैव ऑल ड्रॉन्ड, कि मेरी सारी फैमिली डूब जाती। ड्रॉन मीन्स जब कोई लिविंग बीइंग जो है वो पानी के अंदर डूब जाए। ठीक है, तो वो कह रही थी कि मेरी फैमिली सारी, ऑल, सारे डूब जाते, ड्रोन्ड, एक्सेप्ट, अगर, ठीक है, फॉर हर फादर्स क्विक रिएक्शन, अगर उसके बाबा का वो जो रिएक्शन था वो ना होता। ठीक है, हर फादर्स, उसके अब्बू का क्विक रिएक्शन, जल्दी से जो उन्होंने रिएक्शन दिया, किस चीज़ पे रिएक्शन दिया? ही हर्ड द क्रंच, उन्होंने जो ये एक क्रंच यानी जो वो एक क्रशिंग सा साउंड होता है जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ टकराती है और वो जो टकराने की और वो जो आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, ही हर्ड, उन्होंने सुन लिया, द क्रंच, वो जो आवाज़ थी बर्फ़ से शिप टकराने की जो आवाज़ थी, उनको उन्होंने सुना और उन्होंने सीरियसली लिया, रिएक्शन दिया उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन लेंगे और कहेंगे कि नहीं होगा कुछ सिस्टम में, this and that, and they will forget about it. But Milvina's father, he was very careful and he heard the sound and he took it seriously. When he heard the sound of the ship, the crunch, when the ship hit the iceberg, वो जो crunch, वो जो आवाज़ पैदा हुई थी, एक क्रश की जो आवाज़ पैदा हुई थी, ठीक है, so yes, he heard the iceberg hitting the ship sound. And he went to investigate, went to check that what happened. ठीक है, went to मतलब वो चले गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, देखने के लिए क्या हुआ है, right? He quickly, वो जल्दी से returned, वापस आए, वो जल्दी से वापस आए, and they all went up on deck, और वो सारे ही ऊपर चले गए डेक पे। Now what is a deck? डेक इज़ द ओपन एरिया ऑफ द शिप। शिप में कुछ कुछ जगहों पे जो होता है वो छत होती है, रूम्स टाइप बने होते हैं, एंड सम एरियाज ऑफ द शिप आर ओपन, ठीक है, जहाँ से आसमान नज़र आता है, नीचे पानी नज़र आता है, दैट एरिया इज़ कॉल्ड द शिप, द डेक, सॉरी, दैट एरिया इज़ कॉल्ड द डेक. So Milvina's father, when he heard the crushing sound, he went to see that what happened, and he then quickly returned to his room. He picked up his wife, he picked up his children,
and they all went to the open area of the ship, that is the deck. Okay, he saw the lifeboats being lowered. So when the Milvina's father reached the deck of the ship, there he saw that lifeboats, जो इमरजेंसी में बोट्स इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी शिप है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, रास्ते में, या उसमें कोई मसला हो जाता है, तो उसी शिप के अंदर छोटी छोटी कश्तियाँ रखी गई होती हैं, जहाज़ों के अंदर छोटी छोटी कश्तियाँ रखी गई होती हैं, और वो कश्तियाँ फिर निकाली जाती हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी टू सेव द पीपल, ताकि लोगों को बचाया जा सके। उन छोटी छोटी कश्तियों को कहते हैं लाइफ बोट्स। हियर यू कैन सी देयर इज़ अ बिग शिप, और बिग शिप से नीचे उतारे जा रहे हैं दिस लाइफ बोट्स, ठीक है। सो व्हेन मिल्वीनास फैमिली, वो जब डेक पे चले गए, ठीक है, तो ही सॉ, उन्होंने देखा द लाइफ बोट्स, वो जो लाइफ बोट्स थी, वो जो छोटी छोटी कश्तियाँ थी, बीइंग लोवर्ड मीन उनको नीचे उतारा जा रहा था, ठीक है। मिल्वीना वाज सो स्मॉल, मिल्वीना उस टाइम इतनी छोटी थी, दैट ही पुट हर इनटू अ सैक, कि मिल्वीना के अब्बू ने उसे एक छोटे से बैग में डाल दिया, सैक बैग, ठीक है, एक छोटी सी बोरी या ऐसे बैग में डाल दिया, ताकि वो उसको कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाए कहीं वो, ठीक है। ही गॉट हिज वाइफ ऑन टू द लाइफ बोट, उन्होंने अपनी बीवी को लाइफ बोट पर बिठा दिया या लाइफ बोट पर चढ़ा दिया। 13, लाइफ बोट नंबर 13। अब ये जो लाइफ बोट उतारे जा रहे थे, इनमें अपने नंबर्स थे, लाइफ बोट नंबर 1, 2, 3। तो लाइफ बोट नंबर 13 पे उन्होंने अपनी बीवी, जिनका नाम एटी था, और मिल्वीना को एक बैग में डाल के एटी और मिल्वीना को उन्होंने लाइफ बोट पर बिठा दिया। एंड देन लोवर्ड द प्रीशियस सैक ऑन टू द बोट, और फिर जब उन्होंने अपनी बीवी को बिठाया तो उसके बाद उन्होंने लोवर्ड यानी नीचे उतार दिया द प्रीशियस सैक, वो जो अनमोल थैला था या जो अनमोल बोरी थी या जो अनमोल बैग था। प्रीशियस यानी जिसकी कोई कीमत ना हो, जो कि अनमोल हो, ठीक है, ऑन टू द बोट, और उसको भी कश्ती के हवाले कर दिया। ओके, व्हेन टाइटैनिक वाज ड्रॉनिंग, जब टाइटैनिक जो थी वो डूब रही थी और ये जो लाइफ बोट्स थी ये उतारे जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये फैसला किया था कि बच्चों और औरतों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाया जाएगा, अगर एंड में शिप या जहाज़ जो है वो नहीं डूबती और लाइफ बोट्स बच जाती हैं, तब जाके मर्द बैठेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द रूल दैट फीमेल्स एंड किड्स हैव टू बी सेंट बिफोर एनीथिंग एल्स। ही सडनली, अचानक से, इन अ मोमेंट, ही नोटिस्ड, उनको पता चला, उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, दैट बेट्रम वॉज मिसिंग, दैट बेट्रम इज़ नॉट प्रेजेंट। वेयर इज़ बेट्रम? बेट्रम को उन्होंने सुला दिया था ना, याद है? तो अब पता चलता है कि बिकॉज दैट वाज सच अ बैड कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी थी और इसमें पता ही नहीं चला कि बेट्रम कहाँ है। एंड अचानक से जब मिल्वीना के अब्बू जो थे, उन्होंने मिल्वीना और एटी को बोट में उतार दिया, उनकी जान बचा ली, तो उन्होंने नोटिस किया कि बेट्रम जो है वो तो है ही नहीं। ही सर्च फ्रेंटिकली, उन्होंने बहुत ही फ्रेंटिकली, when you do a task in a very hurried manner and when you do it in a lot of tension, जब बंदे पे टेंशन आ जाती है और उस टेंशन के आलम में जब कोई काम जल्दी जल्दी करता है, उसको फ्रेंटिकली कहते हैं, ठीक है। तो ही सर्च फ्रेंटिकली, उन्होंने बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही टेंशन के आलम में बेट्रम को ढूंढना शुरू किया। सर्च मीन्स ढूंढना। ही स्पॉटेड, उन्होंने देखा, ही नोटिस्ड बेट्रम लीविंग इन अनदर लाइफ बोट, उन्होंने देखा कि बेट्रम जो है वो जा रहा है एक दूसरी लाइफ बोट में। लीविंग, चले जाना। सो बेट्रम वाज गोइंग इन अनदर लाइफ बोट एंड न्यू, और वो जानते थे, समबडी वुड टेक केयर ऑफ हिम, कि कोई ना कोई, समबडी मीन्स कोई, वो टेक केयर ऑफ हिम, कि कोई ना कोई बेट्रम का ख्याल रख ही लेगा। उतना इनके लिए काफ़ी था कि जो बेट्रम है वो सेफ़ है, वो
लाइफ बोट में चला गया है और जो टाइटैनिक थी वो डूबने वाली थी। A few days later, कुछ दिनों बाद एटी फाउंड हर लिटिल बॉय। एटी बेटरम के साथ एटी को बेटरम मिल गया था, इवन दो वो अलग अलग शिप्स में थे, लेकिन फिर जिनकी अगर खोए हुए जो लोग थे किसी फैमिली के, वो फिर कुछ दिनों बाद जब सब कुछ स्टेबल हुआ तो वो मिल गए एक दूसरे को। तो इसी तरह एटी और बेटरम जो थे वो मिल गए थे, और एटी जो थी जो कि मिलवीना की अम्मी थी, उनको बेटरम मिल गया। लिटिल बॉय बेटरम को कह रहे हैं, छोटा बच्चा। मिलवीना डैड वाज ब्रेव, ये मिलवीना की डैड की पिक्चर है। मिलवीना के डैड बहुत बहादुर थे एंड अनसेल्फिश, और वो बहुत ही वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो खुदगर्ज नहीं थे। ठीक है, सेल्फिश खुदगर्ज को कहते हैं। वो खुदगर्ज नहीं थे, वो बहुत ही बहादुर इंसान थे। ही स्टेड ऑन द सिंकिंग शिप, वो डूबती हुई टाइटैनिक में रहे। ठीक है, ही लेफ्ट द अदर फीमेल्स एंड द other children to be in the lifeboat, and he chose to stay on the Titanic which was going to sink. तो उन्होंने वो रुके रहे, stayed means रुके रहना, on the sinking ship, डूबती हुई कश्ती पर, to help others, ताकि बाकी लोगों की भी मदद की जा सके। and this is the most important thing, कि जब भी कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, और वो सब पर इक्वली हो, तो उसमें उन लोगों को हमेशा सराहना चाहिए जो कि दूसरों की मदद करते हैं, इवन दो वो मुसीबत उन पे भी होती है, but still they choose to help others. And same was Milvina's father, which was very brave, and he didn't thought that कि मेरी फैमिली चली गई है, मुझे भी जाना चाहिए। No, he didn't do that. उन्होंने पहले अपनी फैमिली को बचाया, उसके बाद he helped the other people, and he stayed on that sinking ship. Sinking ship means डूबते हुए जहाज में। 706 people were saved. 706 लोगों को बचाया जा चुका था। Saved mean बचा लेना। And 1523 drowned, और 1523 लोग जो थे वो डूब चुके थे। Drowned means डूब जाना। Sadly, बहुत बुरा हुआ। लिटिल मिलवीना's डैड, जो छोटी मिलवीना थी उसके जो फादर थे, was one of the unlucky ones, कि वो भी उन बदकिस्मत लोगों में शामिल थे जो कि डूब गए। उन 700 लोगों में वो शामिल थे जो कि डूब गए। एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस 706 पीपल वर मैन, क्योंकि ज़्यादातर औरतों और बच्चों को भेजा जा चुका था। जो पीछे रहते थे उनमें ज़्यादा अमाउंट जो थी वो मेल्स की थी। ठीक है, एंड मिलवीना's फादर was helping others and the ship sank, और he died. मिलवीना's enjoyed a long healthy life. मिलवीना जो थी उनको बचाया जा चुका था, उनकी अम्मी और उनके बहन मिल चुके थे। इसी तरह मिलवीना ने enjoy की, उन्होंने गुजार ली एक लंबी और एक सेहतमंद ज़िंदगी। लॉन्ग, लंबी, हेल्दी, सेहतमंद। enjoyed means उन्होंने गुजारी, बहुत ही मज़े से गुजारी ज़िंदगी। but always missed her dad, but she always used to recall her dad and she always missed her, because उनके डैड जो थे he can be a hero, वो हीरो ठहरे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, और इसी तरह वो उनको बहुत याद करती रही। The Titanic wreckage was discovered in 1985। अब देखें 1912 में वो शिप डूबी, और फिर 1985 में जो टाइटैनिक का जो wreckage था, टाइटैनिक जो डूबी हुई टाइटैनिक थी, उसके जो रिमेन्स थे, उसके जो बचे हुए हिस्से थे, ठीक है, या जो उसके ख़राब पुर्जे आप कह लें या ख़राब टाइटैनिक, वो उनको डिस्कवर किया जा चुका था इन 1985, तकरीबन 70 साल बाद। ठीक है, 70-75 साल बाद जो टाइटैनिक के जो रिमेन्स थे वो उनको डिस्कवर किया जा चुका था। समंदर की तह में वो पड़े हुए थे। स्टिल इट इज़ इनसाइड इन देयर ऑन द फ्लोर ऑफ द सी। मिलवीना बिकेम फेमस अगेन। मिलवीना जो है उनको वो एक दफ़ा और फेमस हो गई। एक दफ़ा तो वो
टाइटैनिक पर सबसे छोटी बच्ची का खिताब लिए हुए एक दफ़ा वो मशहूर हुई थी, लेकिन फिर वो अगेन वो फेमस हो गई, बिकेम हो जाना, एज पीपल वांटेड टू मीट, क्योंकि लोग चाहते थे कि वो मिले, वांटेड चाहना, मीट मिलना, द मिरेकल बेबी, वो इस मुआजिज़े से बचने वाली बच्ची जो है, क्योंकि ये मुआजिज़ा ही था कि वो बची, बिकॉज a lot of people died, a lot of people were suffering, बहुत ही ठंड एंड बहुत कुछ सहा उन्होंने, दैट इज़ वाई ये एक मुआजिज़ा था जो कि वो बच गई थी, और वो छोटी थी, उसको बैग में बंद किया गया था, एंड 2 months का बच्चा, बेबी ऑफ 2 months कैन नॉट सर्वाइव इन दिस मच कोल्ड कंडीशन, जो कि उस वक्त टाइटैनिक जहाँ पे डूब रहा था उस समंदर में थी, बट स्टिल she made it to the life and she was saved, she led a good life, और लोग उससे मिलना चाह रहे थे क्योंकि वो एक मुआजिज़तन बचने वाली बच्ची थी, right, and people wanted to meet. So this is the story of the Titanic. Coming to the word meanings, grade 6, passenger, a person who travel in a transport, किसी भी ट्रांसपोर्ट, जहाज़, बस, जहाज़ हो गया, बस हो गया, शिप, इन चीज़ों में किसी भी ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल करें किराया देकर, तो ही इज़ कॉल्ड अ पैसेंजर, राइट. ट्रीटेड, टू केयर, ख्याल रखना. वॉयज, अ जर्नी थ्रू द सी या ट्रैवलिंग, सफ़र करने को या जब आप समंदर के ज़रिए सफ़र करते हैं उसको वॉयज कहते हैं. आइसबर्ग, अ लार्ज पीस ऑफ आइस ब्रोकन फ्रॉम द ग्लेशियर, ग्लेशियर से जब बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो अलग हो जाए उसको आइसबर्ग कहते हैं. सैंक, सिंक, गो अंडर वाटर, डूब जाना. केबिन, स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा. ड्रोन, टू डाई बाय सबमर्जिंग इन वाटर या लिक्विड, ड्रोन जो है जब आप पानी के अंदर डूब के मर जाए, आप नहीं, जब कोई भी पानी के अंदर डूब के मर जाता है उसको ड्रोन कहते हैं. आई एम सॉरी. एक्सेप्ट, इफ़ नॉट, अगर. रिएक्शन, रिस्पॉन्स या एक्शन, कोई भी चीज़ हो और उसके बारे में आप फिर उसका आप जब एक एक्शन करते हैं उस चीज़ को रिवर्स करने के लिए या उस चीज़ को तेज़ करने के लिए, उसको रिएक्शन कहते हैं. क्रंच, क्रशिंग नॉइज़, वो जो चीज़ें जब ख़राब होती हैं और उसके जो वो जो हिट करती हैं एक दूसरे को, और वो जो क्रशिंग सी आवाज़, टूटने की जो आवाज़ होती है वो आ जाती है, उसको क्रंच कहते हैं. इन्वेस्टिगेट, टू चेक, टू एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट यानी किसी चीज़ को देखना क्या हो रहा है, ऑब्ज़र्व करना उसको. रिटर्न, कम बैक, वापस आना. डेक, ओपन फ्लोर ऑफ द शिप, जो जहाज़ होता है उसका जो ओपन एरिया होता है जहाँ से पूरा आसमान और समंदर सब कुछ नज़र आता है उसको डेक कहते हैं. लाइफ बोट्स, स्मॉल बोट्स यूज्ड इन इमरजेंसी, छोटी छोटी वो कश्तियाँ जो कि बड़े बड़े जहाज़ों में रखी जाती हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो लोगों को उनमें बचाया जा सके. लोअर्ड, टू लीव डाउन, किसी चीज़ को नीचे उतारना. सैक, बैग, थैला. प्रीशियस, इम्पॉर्टेंट, ग्रेटली इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कीमती जो होता है. सडनली, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अचानक से. नोटिस्ड, गॉट टू नो, पता चलना. मिसिंग, नॉट प्रेजेंट, ना होना. फ्रेंटिकली, नर्वसली एंड क्विकली, कोई भी काम जब आप नर्वस होके करें और जल्दी जल्दी करें. स्पॉटेड, सॉ, देखना. ब्रेव, करीजियस, बहादुर. स्टेड, लेफ्ट देयर, वहीं पर रहना. रेकेज, लॉस या वेस्टेज, जो चीज़ बर्बाद हो जाती है, डूबी हुई शिप्स को बेसिकली रेकेज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, वो वेस्ट हो जाता है, वो लॉस हो जाता है. डिस्कवर्ड, फाउंड, मिलना. मिरेकल, वंडर, यानी बहुत ही मुआजिज़ा, ठीक है, बहुत बड़ा मुआजिज़ा. Yeah, that's it, grade 6. I hope you enjoyed. And if you want to know more about the Titanic, there's a Hollywood movie about it. And that is Titanic. And अगर आप इतनी लंबी मूवी नहीं देख सकते, you can go and watch documentaries on Titanic. Titanic पे बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, उसमें उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने सब कुछ विटनेस किया था, किस तरह से जहाज़ डूबा, एग्जैक्टली क्या हुआ था. सो यू कैन गो एंड सर्च ऑन अ यूट्यूब अबाउट टाइटैनिक. एंड इट वाज ग्रेट न्यूज़ ऑफ द टाइम. 1500 लोगों का मरना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. So that's it, go and search and see more things about Titanic. और I give you an activity कि आप टाइटैनिक के बारे में एक असाइनमेंट कर लें,
What if? Do it, okay? So take out a page and pen, write your name on the top of it and search about Titanic के बारे में fun facts लिखें, ठीक है, एक ही पेज पर, and send me the picture of that page with your name on it so that I can check it and ये आपका assignment हो जाएगा, बल्कि है. Do the assignment, take care of yourself, take care of your family, please don't go out, wash your hands properly and stay safe. Allah Hafiz.